Okay, welcome to lecture number 4 of Software Engineering 1 CSE 291. In the previous lecture we started off with Agile. I introduced you to the Agile process models, and one of the models that we discussed was extreme programming. In today's lecture, before we move on to next Agile process model, I will introduce or give a quick overview of what we covered in the previous lecture. So one of the key things that we covered in the last lecture was agility principles. We covered that there were 5 agility principles. Number 1 is customer involvement, and we saw that if customer is not actively part of your agile team, then your development or your process model would fail. So one of the biggest requirement to successfully use any of these agile process models is customer involvement. If customer is not there, then your development or your project would fail. So, and you cannot use those agile process models. So customer involvement is key to successful usage of these agile process models. The second agility principle was incremental development, and we before I move to incremental development, let me just go back and summarize that the customer was one of the key members in that agile team. Customer was involved in defining the user stories, that is telling to the user requirements, and then in prioritizing those requirements so that you can pick that which user story or which requirements you have to do in which increment. And also customer was a part of developing those acceptance test criteria with you. So customer has a lot of role, a big role to play for you in successfully using this agile process models. The second agility principle that every agile process model should have is incremental development. So as we discussed, that these agile models, they are basically variants of incremental model, but the size of increment is very small. In fact, we saw that the extreme programming process model that we covered in the previous lecture, the size of maximum increment is 15 days. So no increment can be longer than 15 days. Okay? And you can have multiple increments in one day. So this is very interesting. Hoti increment hi hai, but they are very small. Or in each increment, you develop some, you give some value, you add some value to the product that you are working on. The third agility principle is that the emphasis is on people, not process in agile process models. ठीक है जी, यानी कि हम process वाली चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे. We are not spending lot of time in planning. We are not spending lot of time in designing. But our emphasis is on people. Whenever we commit in agile, we commit as a team. ठीक है. इसी तरह customer की involvement is we basically tell the customer that you are a very important part of our team. Easy that when we code with people sitting together, not with individuals working on single computer, but there are 2 people working on one computer. So we believe in people, not process, or agility believes in people, not process. Embraces change. Every agile process model, we cannot call a model an agile model unless it embraces change. Every agile models should accept changes very easily. So that's why your incremental development hoti hai, it ensures that the model embraces changes. When you develop in small increments, it means that if a customer comes up with a new with a change in the requirements, you can accommodate that very easily. The final agility principle is simplicity. ठीक है जी? And by simplicity, we maintain simplicity at multiple levels. For example, when we are planning, then we ensure कि हम जब प्लान करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर के लिए प्लान नहीं करें. वी आर ओनली प्लानिंग फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, सो वी आर कीपिंग इट सिंपल. सिमिलरली व्हेन वी आर डिजाइनिंग, वी आर नॉट wasting or spending a lot of effort on designing, but what we do is basically we only design CRC. We use CRC cards for designing, and our focus is on finishing the job, finishing the increment, or getting the build to the customer, and not on design. So simplicity is one of the key principles. So there are 5 principles. Any model which we call an agile model should follow these principles. Number 1 was customer involvement, then incremental development, people not process, embrace change, and simplicity. And one of the models that we covered in the last lecture was extreme programming. And here is the picture that we also saw in that lecture. It starts off with planning. After planning, we do design. Basically these activities are similar to any of those traditional models. But the thing is that differentiates it from other model is that the size of this circle is very small, and each increment is only 2 weeks long.
और नॉट लॉन्गर देन दैट। जब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है तो प्लानिंग में आप सबसे पहला काम क्या करते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, आप यूज़र के साथ बैठ के यूज़र स्टोरीज, यूज़र विल टेल यू कि जी ये बनाना है, आप वो यूज़र स्टोरीज बनाते हैं। उन यूज़र स्टोरीज की बेसिस के ऊपर आप फिर हर यूज़र स्टोरी को वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू किस टर्म्स में कि इस यूज़र स्टोरी को या इस काम को करने के लिए आपकी कितनी एफर्ट लगेगी। नाउ दैट एफर्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, दैट एफर्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कि कितने, फिर उस मैन आवर्स को आप दिनों में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि एक इंक्रीमेंट को करने में, एक यूज़र स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। आपके पास यूज़र स्टोरीज आ गई, उनकी वैल्यूज़ आ गई। देन इन द प्लानिंग यू सिट विद द कस्टमर एंड डिसाइड, और बेसिकली आप मिल के एक एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया प्रिपेयर कर लेते हैं, और इन चीज़ों के बाद आप एक आइटरेशन प्लान बना लेते हैं। आप कस्टमर के साथ बैठते हैं, ही हेल्प्स यू इन प्रायोरिटाइजिंग दोज यूज़र स्टोरीज, यानी कि कस्टमर ने आपको यूज़र स्टोरीज बताई, देन ही विल सिट विद यू एंड प्रायोरिटाइज दोज यूज़र स्टोरीज। ही विल टेल यू कि दीज आर द थिंग्स दैट ही वांट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, दिस इज द थिंग दैट ही वांट्स इन द सेकंड इंक्रीमेंट, एंड you basically make an overall iteration plan. When it comes to the design, तो design के अंदर extreme programming truly believes that keep it simple. So minimal documentation, minimal design, and the emphasis is on coding. ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ जो डिज़ाइन के अंदर है वो हम कहते हैं स्पाइक सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कि हम डिज़ाइन प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं। अगर कोई ऐसी इंक्रीमेंट आई है विच इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट, ठीक है, and you are not sure that whether you will get it right the way you are thinking or not, so what you would do is you will make a quick prototype, and if that is correct, okay, then you will follow it. ठीक है जी। And the next phase is coding. Coding is interesting because it is not traditional coding कि आप एक बंदा बैठा है और उसको आपने काम दिया and he is coding it. In extreme programming there is pair programming, so there pair or a group or two people sitting together and trying to code something. And another interesting thing in coding is the concept of refactoring. Refactoring means कि क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हमारा एम्फेसिस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर किस चीज़ के ऊपर है कि हमें जो इंक्रीमेंट मिली है वो हमने अपनी बिल्ड ख़त्म करनी है और कस्टमर को एक नई फंक्शनैलिटी उसके सॉफ्टवेयर में करके देनी है, ठीक है। तो हमारा एम्फेसिस क्या है, काम करके देना है। हमारा एम्फेसिस जब हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं उस वक्त ये नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी को किस लेवल पे रखते हैं, हमारा कोडिंग कितनी एफिशिएंट है। लेकिन बिकॉज वी आर अ गुड कंपनी एंड वी वांट टू मेंटेन क्वालिटी, तो देयर इज अ प्रोसेस इंट्रोड्यूस विच इज कॉल्ड रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग का मतलब क्या है कि आप अपने कोड को सीमलेसली इंप्रूव करते रहते हैं थ्रू आउट। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट व्हेन यू आर फॉलोइंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, कि आप अपने कोड को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। लेकिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेंशन हियर इज कि जो रीफैक्टरिंग का प्रोसेस है इट शुड बी सीमलेस, यू शुड नॉट, और as a result of refactoring there should not be any new errors introduced in the product, ठीक है, this is very important। और जो जिस तरह से टेस्टिंग की जाती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, इट इंश्योर्स कि जो रीफैक्टरिंग है उसकी वजह से कोई एरर अगर आए तो आपको उसी दिन पता लग जाए। क्योंकि एक चीज़ हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर कवर की थी कि आप जो यूनिट टेस्ट आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं अपने जब यूजर स्टोरीज के साथ, तो यू कंडक्ट दोज यूनिट टेस्ट डेली। इट डजेंट मैटर आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट किस दिन ड्यू है, you basically conduct those unit tests daily. So जब आप daily unit testing कर रहे हैं and if you're doing refactoring also, तो if there is a bug you will be able to identify it, ठीक है। So जो इस process के अंदर ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जिसकी वजह से it ensures कि ये सारा काम smoothly चलता रहे, ठीक है। और फाइनली आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करते हैं। जब भी आपने कस्टमर को एक बिल्ड देनी है उससे पहले जो आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुरू में डिफाइन किया था प्लानिंग के अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, देन यू गिव इट टू द कस्टमर, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज अब ये हम देखें कि ये किस तरह से वो सारे एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जिस तरह कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आप प्लानिंग के अंदर देखें, देयर इज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ह्यूज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सेकंड वन वाज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, वो भी हमने देख लिया कि हम कस्टमर के साथ बैठते हैं और इंक्रीमेंट का एक प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इट इंश्योर्स देयर इज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। फिर पीपल नॉट प्रोसेस, पीपल नॉट प्रोसेस किस तरह शो कर रहा है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट से शो कर रहा है। और कोडिंग के अंदर आप मल्टीपल लोग बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, तो आपकी ओनरशिप जो है वो एक बंदे की नहीं है बल्कि इट इज डिवाइडेड अमंग द ग्रुप, ठीक है जी। इस तरह एम्ब्रेस चेंज किस तरह करता है कि हमने कहा हुआ है कि जी डिज़ाइन इज सिंपल और देयर इज इंक्रीमेंट साइज इज वेरी स्मॉल, तो जब भी चेंज आएगी इट विल बी इजीली अकोमोडेटेड, ठीक है जी। और इसी तरह रीफैक्टरिंग भी हमने इसीलिए रखी हुई है कि बार बार जब चेंजेस हो रही हैं तो हम अपने रीफैक्टरिंग करते रहें ताकि हमारे कोड की क्वालिटी एक तरह की रहे। द फाइनल वॉज सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी हमने देखा कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सही है इसके जी डिज़ाइन के बारे में उसका प्रिंसिपल ये है कि कीप इट सिंपल, ठीक है। तो वी बिलीव इन मिनिमल डिज़ाइन क्योंकि दिस प्रोसेस बिलीव्स इन और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बिलीव्स इन चेंज,
कि change will come, so we should not spend too much time on designing, rather we should focus on getting the job done for the customer. Okay जी, and finally there were some key points about extreme programming. Extreme programming के अंदर systematic testing है, continuous improvement है, and customer involvement is there. ठीक है जी, customer आपका ना सिर्फ requirements बताने के अंदर आपका पार्ट है, बल्कि कस्टमर उनको प्रायोरिटाइज कराने में भी आपके साथ शामिल होता है। ठीक है जी, और जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की जो टेस्टिंग की अप्रोच है वो इसी तरह से बनाई गई है कि आपका सारा ये जो रीफैक्टरिंग, इट इंश्योर्स कि आपकी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि हम टेस्टिंग डेली कर रहे हैं, हम रीफैक्टरिंग भी करते हैं, उसकी वजह से हमें ये, अगर रीफैक्टरिंग आप करें और उसको टेस्ट ना करें और आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए और आपको अगली इंक्रीमेंट में जाके वो पता ही नहीं लगेगा कि क्या मैंने चेंज किया था तो ये एरर आया। जबकि डेली जो हमने टेस्टिंग रखी है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट इंश्योर्स कि इफ एन एरर इज इंट्रोड्यूस्ड देन इट इज डिस्कवर्ड ऑन द वेरी सेम डे। ठीक है जी, और फाइनली देयर वर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स with extreme programming, and I think those problems would be applicable to all the agile models. Number one was कि अगर आपके पास कस्टमर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है जी, if the customer is not there then your agile model would fail. ठीक है जी, क्योंकि अगर कस्टमर ही आपके साथ नहीं है, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू गिव यू टाइम, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू गिव यू फीडबैक, कस्टमर इज नॉट विलिंग टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स विद यू, देन हाउ वुड यू नो व्हाट यू हैव टू डेवलप इन द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है जी, तो अगर कस्टमर नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई दीज एजाइल मॉडल्स। ठीक है जी, और सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हम डिज़ाइन को सिंपल रखते हैं एंड वी डू नॉट डू वेरी डिटेल्ड डिज़ाइनिंग, तो हो सकता है कि जो आप आर्किटेक्चर अपनी प्रोडक्ट के लिए चूज़ कर लें, ठीक है, वही गलत हो और आपको ये बहुत लेटर स्टेज के ऊपर ज़्यादा के पता लगे। तो दीज प्रॉब्लम्स कैन हैपन विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड वी नीड पीपल हु हैज़ द ओवरसाइट और हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो कि आपको बता सकें कि दिस इज़ द आर्किटेक्चर सूटेबल फॉर दिस प्रोडक्ट एंड यू विल बी फाइन इफ यू फॉलो दिस आर्किटेक्चर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्योंकि आपका आर्किटेक्चर गलत हो जाए तो आपको पूरी प्रोडक्ट, यू नो, ऑल द एफर्ट कैन गो वेस्टेड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। In today's lecture, we will cover another agile process model which is called Scrum. Now again, why I chose this model, because I have seen various companies, companies in Pakistan, various companies internationally who are using this methodology. So I wanted to introduce this methodology or this process model to you. Again, it is another agile model. Scrum is another agile model. Before we move on, let me tell you कि Scrum loves क्या है basically. If you have ever seen rugby, अगर आपने लोगों को टीवी पे खेलते हुए देखा हो, तो वो जो लोग सारे एक बॉल के गिर्द जमा हो जाते हैं और एक यूँ सारे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली स्क्रम। ठीक है, तो अगेन इसका मकसद यही है कि यू नो पीपल आर वेरी क्लोजली यू नो वर्किंग टुगेदर यू नो टू अचीव समथिंग, और इस तरह का, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्क्रम। अच्छा जी, moving on, in the Scrum, the emphasis is on some set or already used software patterns. ठीक है जी, और Scrum के अंदर आप क्या क्या करते हैं? Scrum के अंदर आपकी बैकलॉग बनती है। तीन चीज़ें होती हैं Scrum के अंदर। You have a backlog. बैकलॉग क्या होती है कि अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जब ये स्क्रम वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे, वी विल ट्राई टू कंपेयर दिस विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड सी हाउ यू नो दे मैप अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर एक बैकलॉग होती है, देन वी हैव स्प्रिंट्स इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और फिर हमारे पास होती हैं स्क्रम मीटिंग्स। बैकलॉग आपकी क्या होती है? जब आप प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट, अभी आपका प्रोजेक्ट शुरू होना है, ठीक है, तो बैकलॉग के अंदर आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली 4 रिक्वायरमेंट एक इंक्रीमेंट में कर देते हैं, तो उस एक इंक्रीमेंट के बाद आपकी बाकी जितनी रिक्वायरमेंट बचेंगी वो आपकी बैकलॉग में होगी। सो बैकलॉग में क्या चीज़ें होती हैं? जो भी आपने काम इस प्रोजेक्ट के लिए करना है, दैट इज़ इन द बैकलॉग। स्प्रिंट्स आपकी क्या होती हैं? हर इंक्रीमेंट जब आप करके देते हैं तो वी कॉल इट अ स्प्रिंट इन स्क्रम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा जी मुझे ये अगली 4 रिक्वायरमेंट्स एक हफ्ते में करके दे दें, तो हमारा जो स्प्रिंट की ड्यूरेशन होगी वो 1 हफ्ता होगी, और हमारी स्प्रिंट के एंड पे एक नई प्रोडक्ट की बिल्ड चली जाएगी, ठीक है। और स्क्रम मीटिंग्स होती हैं आपके स्क्रम के अंदर। स्क्रम मीटिंग्स, वी कंडक्ट दीज मीटिंग्स एवरी डे, ठीक है, यानी कि दीज मीटिंग्स आर डन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आपकी सारी की सारी प्रोजेक्ट टीम बैठती है
आपने उनको जो जो टास्क असाइन किए होते हैं, यू बेसिकली आस्क देम क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर यू मेक अ डिसीजन कि आपका काम हुआ था नहीं हुआ था, उसमें क्या मसले आए थे, और उसको हल करने के लिए वेदर यू नीड मोर रिसोर्सेज टू हेल्प दैट गाय जिसके काम के अंदर मसले आए थे, और व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 3 थिंग्स इन स्क्रम, देयर इज बैकलॉग, देयर आर स्प्रिंट्स, एंड देन वी हैव स्क्रम मीटिंग्स। Okay ji, this is a picture of Scrum. This picture is taken from a book which is Agile Software Development with Scrum, and it is by Ken Schwaber and Mike Beadle. See, so the source of this picture is Agile Software Development, and this is Agile Software Development with Scrum, and this is written by Ken Schwaber and Mike Beadle. Okay, now this picture is showing multiple things. Number one, it shows that there is sprint backlog. ये आपको जो boxes नज़र आ रहे हैं एक लाइट ब्लू कलर के और डार्क ब्लू कलर्स के, ये शो करती है कि आपके डिफरेंट वर्क यूनिट्स पड़े हुए हैं जो कि आपने डिफरेंट स्प्रिंट्स के अंदर करने हैं। ठीक है, अब ये स्प्रिंट्स की ये जो बॉक्सेस हैं, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा बॉक्स पहले करना है, कौन सा बॉक्स बाद में करना है? ठीक है, नाउ दिस इज इन मोर देन वन वेज एक्सक्यूज मी, दिस इज इन मोर देन वन वेज सिमिलर टू एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, कि ये जो बैकलॉग का प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पे करना है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर। Obviously customer is the only person who can tell you कि this is the thing that he wants first and this is the thing that he wants at the later stage। तो आपका पूरे के पूरा जितना भी आपका काम रहता है आपने उसको इस फॉर्म में रखा हुआ है। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो लाइट ब्लू कलर का ब्लॉक है, आई वॉन्ट टू डू दिस इन दिस स्प्रिंट, ठीक है, और द कस्टमर टेल्स यू कि डू दिस इन दिस स्प्रिंट, ठीक है, तो आप उस एक ब्लॉक को उठाते हैं, ठीक है, और यू डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एक बैकलॉग के अंदर से आपने एक ब्लॉक उठाया है, उसके अंदर मल्टीपल टास्क हैं, लेट्स से 5 या 6 टास्क हैं, तो आप उसको, आपकी जो टीम है पूरी की पूरी स्क्रम टीम है दैट सिट्स टुगेदर, या आपकी जो एजाइल टीम है दैट सिट्स टुगेदर, और उसको डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड करती है। उस टास्क के अंदर डिवाइड करने का क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि आप हर टास्क को किसी एक बंदे को असाइन करते हैं, यानी कि आप स्क्रम के अंदर एवरी टास्क इज इन ओनरशिप ऑफ 1 or 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि आप हर टास्क किसी एक बंदे को असाइन करते हैं, ही इज आंसरेबल टू दैट टास्क, या जब वो इस टास्क की कंप्लीशन होगी या डेली जब आप उससे प्रोग्रेस लेंगे तो ही इज आंसरेबल टू दैट टास्क। ही वुड बी बेसिकली विद द पर्सन हु वुड टेल यू कि जी ये टास्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने एक बैकलॉग से एक पूरा ब्लॉक उठाया, उसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया आपकी टीम ने मिलकर। ठीक है, अब एक और चीज़ ये जो आप देख रहे हैं, जो लूप से बने हुए हैं, ठीक है, इस लूप के अंदर, पहले वाले लूप के अंदर लिखा हुआ है 30 डेज। अब इस 30 डेज का क्या मतलब है कि स्क्रम के अंदर एक इंक्रीमेंट का जो साइज है, इट कैन नॉट बी मोर देन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा लंबी आपकी एक इंक्रीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, और एक और चीज़ जो इस डायग्राम के अंदर ऑब्वियस हो रही है वो ये है कि जो दूसरा वाला लूप है, इट सेज 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 आवर्स का यहाँ पे ये मतलब बन रहा है कि आपके जो इंक्रीमेंट 30 दिन की हो, इंक्रीमेंट आपकी, अगर इंक्रीमेंट मल्टीपल डेज की इंक्रीमेंट है तो डेली आपकी स्क्रम मीटिंग होगी। ठीक है, तो हमने देखा था पीछे कि स्क्रम के अंदर 3 चीज़ें हैं। वी हैव अ स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग के अंदर हमने डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम इंक्रीमेंट्स भी कह सकते हैं, और हर इंक्रीमेंट स्क्रम के अंदर स्प्रिंट कहलाती है। आप एक स्प्रिंट पकड़ते हैं, स्प्रिंट को मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं, और दीज टास्क आर असाइन टू इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, और फिर आप डेली एक स्क्रम मीटिंग करते हैं। उस स्क्रम मीटिंग के अंदर आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि जो आपने काम किसी बंदे को असाइन किया होता है, वेदर ही इज डूइंग इट और ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन इट। ठीक है, और जब ये आपका स्क्रम का एक साइकिल या एक स्प्रिंट खत्म हो जाती है, तो you have to show some new functionality. This is something that is common in every incremental model, whether it's agile or not, कि at the end of each increment you need some added functionality in your product. If that is not the case, अगर आप ये अचीव नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि this is not a successful increment. ठीक है, ओके जी। Then we have some roles in Scrum. ठीक है, these are the different things that constitute Scrum. We will first go through them and then we will see how they link up together. So Scrum के roles क्या क्या होते हैं? There is a product owner, then we have a Scrum master, and finally we have team. ठीक है जी, जो product owner होगा, he is the person, he is the customer who is basically telling you
कि आपने नई स्प्रिंट कौन सी करनी है, ठीक है। द स्क्रम मास्टर इज आइदर द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, हु इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट डन, ठीक है जी। एंड देन यू हैव द टीम, जिसको आप बेसिकली डिफरेंट टास्क असाइन करते हैं हर स्प्रिंट के अंदर, ओके जी। और एवरीवन एल्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्क्रम, जो भी बंदे इन 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करते, आइदर समबडी वुड बी इन पार्ट ऑफ दिस टीम, आइदर दे वुड बी स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर, इसके अलावा कोई भी बंदा आपके स्क्रम के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर स्क्रम की आपकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो भी टीम्स स्क्रम का प्रोसेस मॉडल यूज करती हैं, दे फॉलो दीज प्रैक्टिसेस वेरी रिजिडली, क्योंकि अगर वो इनको फॉलो नहीं करेंगे तो स्क्रम वुड फेल, ठीक है। नंबर 1 इज द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। हमने देखा था उस पिक्चर के अंदर, जो स्क्रम वाली पिक्चर थी, कि वो लाइट ब्लू कलर का जब हमने एक स्प्रिंट उठाई थी बैकलॉग से, तो हमने उसको डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है। उस टास्क के अंदर डिवाइड हम किस स्टेज पे करते हैं, इसी स्प्रिंट प्लान मीटिंग के अंदर हम उस स्प्रिंट को पकड़ते हैं और हम बेसिकली जो प्लानिंग मीटिंग होती है उसके अंदर डिफरेंट स्प्रिंट्स डिसाइड करते हैं कि ये एक स्प्रिंट के अंदर इतना काम होगा, दूसरी स्प्रिंट के अंदर इतना काम होगा, तीसरी स्प्रिंट के अंदर इतना काम होगा। फिर हमारी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं द स्प्रिंट, जब एक्चुअल आप एक काम को करना शुरू कर देते हैं। और उस जब एक्चुअल एक काम को करना शुरू करते हैं, फिर हमारी डिवीजन किस तरह से होती है कि हम एक स्प्रिंट को मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं। जब हम उसको मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, एक तो हमारी एस्टिमेशन एक्यूरेट होती है, फिर हम उन टास्क को इंडिविजुअल मेंबर्स को असाइन करते हैं। और फाइनली वंस द स्प्रिंट इज डन, देन वी हैव अ स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है वो क्या करती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो हमने काम इस स्प्रिंट के अंदर अचीव करना था, या जो हमने कस्टमर के साथ मिलकर डिसाइड किया था, वेदर वी हैव अचीव्ड इट और नॉट, ठीक है। तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंदर वी बेसिकली सी कि जो हमने फंक्शनैलिटी कस्टमर को देनी थी, वेदर वी हैव सक्सेसफुली डन इट और नॉट। और देन वी हैव द डेली स्क्रम। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग और डेली स्क्रम में क्या फ़र्क है, डेली स्क्रम तो डेली होता है, ठीक है। अब डेली ये सारे बंदे बैठते हैं और स्प्रिंट की प्रोग्रेस देखते हैं। जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, दैट इज डन एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी स्क्रम का हिस्सा नहीं बन सकती, ठीक है। यानी कि 4 प्रैक्टिसेस हैं स्क्रम की, जैसे हमने पीछे देखे थे। स्क्रम के अंदर रोल कितने हैं, वी हैव एन ओनर, वी हैव अ स्क्रम मास्टर, वी हैव द टीम, ठीक है। इसी तरह स्क्रम की प्रैक्टिसेस क्या हैं, वी हैव अ स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, वी हैव द एक्चुअल स्प्रिंट्स, a sprint review meetings, we have daily scrum, and nothing else is part of the scrum. अच्छा जी, अब जो आपकी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है वो क्या है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर जो आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है, which is basically who, it is the customer, ठीक है, क्योंकि he is the one who has the ownership of the product, he is the one who knows what he wants to get done, ठीक है जी। वो आपकी टीम को अपनी प्रोडक्ट के हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर्स बताता है, ठीक है। और टीम इट्स बेसिकली अ कलेक्टिव डिसीजन। अभी हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हर स्प्रिंट को एक वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम, और फिर कस्टमर हमें प्रायोरिटाइज भी करा रहा है, ठीक है। अब टीम क्या करती है, सारी टीम बैठी हुई है और आप प्रोडक्ट ओनर भी बैठा हुआ है। उसने कहा कि जी ये वाली जो स्प्रिंट है ना, दिस इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब सारी टीम क्या करेगी, वो बैठेगी, वो देखेगी कि अच्छा यार ये स्प्रिंट है, तो इसको करने में हमें कितने दिन लगेंगे। तो पूरी की पूरी टीम कमिट करती है, ठीक है। पूरी की पूरी टीम कमिट करेगी कि हाँ जी हम इस काम को 1 महीने में, 25 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में करके दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कमिटमेंट डन बाय द टीम इन प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है जी। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर जो आपकी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, उसके अंदर बेसिकली यू डू, पहली बात तो ये है कि ये जो स्प्रिंट की ख़त्म होने पे होती है, पहली बात तो ये, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इट इज़ नॉट मोर देन 4 आवर्स, ठीक है। आप 4 घंटे से ज़्यादा इसके ऊपर वेस्ट नहीं करते, ठीक है। टीम क्या करती है, टीम ने अब इस स्टेज के ऊपर कस्टमर को या प्रोडक्ट ओनर को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि जो फंक्शनैलिटी उसने मांगी थी वो आपने अचीव की है स्प्रिंट के अंदर के नहीं की, ठीक है। इफ़ दे सक्सेसफुली डू इट तो इट्स फाइन, इफ़ दे डोंट तो देयर। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरेस्टिंग, कि इनफॉर्मेलिटी इज एनकरेज एंड पावर पॉइंट इज डिस्करेज्ड। कि ये जितने भी एजाइल मॉडल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं,
ठीक है, देयर आर नो फॉर्मेलिटीज, क्योंकि कस्टमर इज सो क्लोज विद यू, ही इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर टीम, सो देयर इज एन इनफॉर्मल एटमोसफेयर बिटवीन यू एंड द कस्टमर, और you tell him frankly कि नहीं, this is how we have done, you don't need to make PowerPoint slides but you can directly show the software, ठीक है, this is what the slide means, कि the emphasis should be on getting the work done which the customer wants. Keep this thing in mind. So the sprint review meetings, they are done at the end of the sprint. The maximum time of the meeting is 4 hours, and the product owner is present in that meeting, and the team, it demonstrates the functionality that the product owner wanted. अच्छा जी, जो डेली स्क्रम होता है, अब ऑल दो कस्टमर या जो प्रोडक्ट ऑनर है ही इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम, लेकिन ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी विद यू डेली, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट हिज जॉब टू डेवलप, इट्स बेसिकली योर जॉब टू डेवलप, ही इज देयर टू टेल यू व्हाट टू डेवलप नेक्स्ट, लेकिन सो ही इज नॉट देयर. जो डेली स्क्रम होता है, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर भी आप दिन में अगर 9 घंटे आपने काम करना भी है ना, 9 घंटे काम करते हैं, तो 15 घंटे इसके ऊपर आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं वेस्ट करते. यानी कि अगेन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि वी डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन दीज फॉर्मेलिटीज़, ठीक है. ये डेली स्क्रम करते डेली हैं, लेकिन इट्स अ वेरी क्विक मीटिंग, जहाँ पे आप एक कमरे में आए, सारी स्क्रम की टीम है, 8-10 लोग बैठे, और प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा होगा, हु इज़ द स्क्रम मास्टर, ही वुड आस्क ईच इंडिविजुअल कि जी आपको अच्छा टास्क ये मिला था, व्हाट इज़ द स्टेटस, आपको ये टास्क मिला था, व्हाट इज़ द स्टेटस, आपको ये, तो ही वुड बेसिकली आस्क एवरीबॉडी, और अगर किसी को कोई भी मसला होगा तो he would share with the team, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वन ऑफ द टीम मेंबर्स इन दैट स्क्रम, और मैं अपने स्क्रम मास्टर को बताता हूँ कि जी द टास्क दैट वाज गिवन टू मी, आई एम हैविंग दीज एंड दीज बग्स इन दैट, ठीक है. तो इसको टीम में शेयर करने का क्या फ़ायदा होगा? द बेनिफिट वुड बी कि इट माइट बी द केस कि मेरा कोई टीम मेंबर इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट, सो ही वुड से ओके जी, मेरा स्क्रम मास्टर कहेगा जी कैन यू हेल्प हिम इन दिस थिंग, सो यू नो आई विल गेट सम हेल्प, बजाय कि मैं वो काम, अगर मैंने 4 दिन के लिए मेरा वो काम था और मैं 4 दिन बाद मिलके अपने स्क्रम मास्टर को बताऊं कि मेरे से नहीं हुआ. द डेली स्क्रम इंश्योर्स योर प्रोग्रेस, इट मॉनिटर्स योर प्रोग्रेस ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, कि अगर आपका डेली आपका काम नहीं हुआ तो यू गेट टू नो. और यू बेसिकली आप जो आपने काम पिछले दिन में किया होता है, यू शेयर इट विद योर टीम, ठीक है जी. और एक और चीज़ कि आपके जो स्प्रिंट की क्योंकि आप जब डेली ये स्क्रम मीटिंग जो डेली स्क्रम मीटिंग करते हैं, इसका फ़ायदा एक और क्या होता है कि इससे आपको पता लगता रहता है कि यार आपने जो बैकलॉग के अंदर एस्टिमेट किए थे कि आपकी पूरी स्प्रिंट इतने दिनों में कर देंगे, वो आपके सही भी हैं कि नहीं. तो यू बेसिकली मैच और मॉनिटर योर एस्टिमेट्स एज वेल कि वेदर योर एस्टिमेशन वाज रॉन्ग और इट वाज राइट, यू नो. सो दिस इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कि आप डेली उसको भी मॉनिटर करते रहते हैं. और देन यू हैव टू टेल योर स्क्रम मास्टर, या आपको अपनी पूरी टीम को बताना होता है कि अच्छा जी कल तो मैंने ये किया, आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ. अब द स्क्रम मास्टर वुड नोट दैट, वो उस चीज़ को लिखेगा कि अच्छा इस बंदे ने कहा था कि इसने ये काम कर लिया, अब कल ये करने जा रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट डे वो आपसे पूछेगा हाँ जी आप ये काम कर रहे थे, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि डेली का काम यू चेक इट डेली, ठीक है जी. और फिर आप बेसिकली दिस इज बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि आई मीन क्वेश्चंस हैं, जिस तरह मैं आप एक टीम मेंबर हैं, आई वुड आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि जी व्हाट हैव यू अकॉम्प्लिश्ड सिंस यस्टरडे, आप मुझे बताएंगे कि जी मैंने ये काम किया. फिर आर योर स्प्रिंट बैकलॉग एस्टिमेट्स एक्यूरेट, इसके अंदर यू विल टेल मी कि जी हाँ मैंने जो एस्टिमेशन आपको बताई थी कि ये टास्क इतने दिन में होगा, हाँ वो सही है कि नहीं है. इफ देयर इज प्रॉब्लम तो यू नीड टू टेल नाउ, अगर नहीं तो यू बेसिकली यू आर आंसरेबल फॉर दिस देन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको फिर बताना, अगर आप कहें कि जी एस्टिमेशन सही थे तो इसका मतलब है फिर आप में खराबी है, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट. थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन टुडे, आज आपने क्या करना, ठीक है. और इज देयर एनीथिंग ब्लॉकिंग यू, फिर आप फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कोई मसला है आपको, दैट्स इट. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस दैट अ स्क्रम मास्टर वुड आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ हिज टीम मेंबर्स. अच्छा जी, द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? अच्छा जी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर आपका जो पहली बात तो ये है कि दिस इज डन फॉर 3 आवर्स, ठीक है जी. और ये आपका जो आखिरी स्प्रिंट होता है, ठीक है, ये उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है. इसके अंदर प्रोडक्ट ऑनर भी हो सकता है, स्क्रम मास्टर भी हो सकता है और टीम भी हो सकती है. इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप देखते हैं कि आपके इस स्प्रिंट के अंदर क्या क्या मसले आए, ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें आपने सही तरह से अचीव की और आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. यानी कि पहली बात तो ये है कि एक तो ये मॉडल वैसे ही जाइल है, ठीक है, जिसके अंदर हम बिलीव करते हैं कि चेंज आएगी और इंक्रीमेंट्स बहुत छोटी हैं. फिर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस
प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन दिस मॉडल, कि आप अपने प्रोसेसेस को इतना एफिशिएंट करना चाहते हैं कि यू वांट टू बी परफेक्ट इन इट। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी बंदे से कहते हैं मैं 7 दिन में ये काम करूंगा, तो आप 7 दिन में करके देना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई वी डू दीज मीटिंग्स, कि यू वांट टू इंश्योर कि द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग इट्स वेरी एफिशिएंट। ठीक है जी। और आपके स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर आप जो एक्शनेबल आइटम्स हैं यू विल शो इट टू द प्रोडक्ट ओनर। ठीक है जी। फॉर प्रायोरिटाइजेशन एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो कि आप सोचते हैं कि यार इस इंक्रीमेंट में या इस स्प्रिंट के अंदर तो नहीं थी, लेकिन ये काम किए जा सकते हैं, तो वी कॉल देम एक्शनेबल आइटम्स। तो यू प्रेजेंट इट टू द प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर फिर आपको कहेगा हाँ यार ये इस इंक्रीमेंट में कर दें, इस इंक्रीमेंट में कर दें। सो द पर्पज हियर इज कि यू वांट टू गिव वैल्यू टू द कस्टमर, और दैट्स वाई यू सिट विद द कस्टमर एंड यू टेल हिम कि जी ये मसले आए थे और दीज आर द थिंग्स विच वी थिंक कैन बी इम्प्रूव्ड। तो वो जो कस्टमर और एक्शनेबल चीज़ों को होगा वो अगली स्प्रिंट्स के अंदर आपको बता देगा कि जी ये स्प्रिंट में करना है, ये स्प्रिंट में करना है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक किसी भी प्रोसेस मॉडल के अंदर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं जो आप वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह अगर आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। जब आपका एनालिसिस का फेस खत्म होता है या आपका कम्युनिकेशन का फेस खत्म होता है तो यू हैव एन SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफाई की होती हैं। यू मे बी हैव यूज केस डायग्राम, मे बी यू हैव सीक्वेंस डायग्राम्स, ठीक है। तो आपके पास एक पूरा स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होता है उस सॉफ्टवेयर का। इसी तरह जब आपका डिज़ाइन खत्म होता है तो यू हैव अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसी तरह जब आप स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यू आर यूजिंग स्क्रम, ठीक है। सबसे पहला तो हमने जिस तरह पहले भी बात की थी प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। दूसरी होती है स्प्रिंट बैकलॉग, कि एक स्प्रिंट के अंदर कितना काम रह गया, ठीक है। और तीसरा होता है स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, कि स्प्रिंट के अंदर आप देखते जाते हैं कि अच्छा इस स्प्रिंट को आपने कहा था कि 40 घंटे लगेंगे या 50 घंटे लगेंगे, ठीक है, या 300 घंटे लगेंगे। तो आप देखते हैं कि अच्छा अब इसके कितने 200 घंटे रह गए, 100 घंटे रह गए। यू बेसिकली बर्न डाउन चार्ट का क्या मतलब है कि स्प्रिंट का काम कितना कम होता जा रहा है, ठीक है। वी विल सी व्हाट दे आर। और आखिरी होता है द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, कि आपने इस प्रोडक्ट की इस दफ़ा कौन सी इंक्रीमेंट की है, ठीक है। तो दे आर 4 थिंग्स दैट यू प्रोड्यूस इन स्क्रम, यानी कि अगर आप स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले 4 डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोड्यूस होंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बच्चे आई हैव सीन दिस हैपनिंग कि व्हेन स्टूडेंट्स डू ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, तो कुछ बच्चों ने लिखा होता है कि दे आर फॉलोड द स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, लेकिन व्हेन द एग्जामिनर आस्क देम कि जी आप मुझे इसके आर्टिफैक्ट्स दिखाएं, आपने ये चीज़ें साथ साथ प्रोड्यूस की हैं कि नहीं की, तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है। वो कहते हैं अच्छा हम जी ये फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू से यू आर फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसेस मॉडल, तो यू नीड टू शो दीज थिंग्स, कि आपकी स्प्रिंट्स कौन सी डिसाइड हुई थी, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की बैकलॉग क्या है, आपकी स्प्रिंट की बैकलॉग क्या है, या आपने जब स्प्रिंट्स की थी तो उनका बर्न डाउन चार्ट्स क्या है, ठीक है। तो यू नीड टू बेसिकली हैव दीज थिंग्स। और इसके अलावा कोई भी चीज़ स्क्रम में शामिल नहीं होती, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगेन आप स्क्रम के अंदर देखें कि हम डिज़ाइन के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। वी बेसिकली आर फोकसिंग ऑन गेटिंग समथिंग डन फॉर द कस्टमर। जो कस्टमर इस एक इंक्रीमेंट में हमसे करवाना चाहते हैं, हम उसको टाइम पे करके देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग इज द प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है जी। अब अगर आप इस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर देखें तो आइटम नंबर के कॉलम में अगर देखें तो वी हैव आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 एंड गोइंग डाउन टू नंबर 22, ठीक है। So we have identified 22 different things that need to be done, ठीक है, and this has been identified or this has been told to us by the customer कि ये 22 चीज़ें आपने करनी है। फिर अगर आप इसी प्रोडक्ट बैकलॉग को देखें तो there is a prioritization। कुछ को हमने कहा हुआ है कि some of them are very high, then they are high and then they are medium। तो हमने इनको उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से या कस्टमर के लिए उनकी क्रिटिकल नेचर के लिहाज से हमने इनको प्रायोरिटाइज किया हुआ कि कौन सी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको हम शुरू की इंक्रीमेंट्स में करते हैं, और जो इसी तरह जो कम होती जाती है उनको लेटर इंक्रीमेंट्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसके बाद यहाँ पर एस्टिमेशन भी की हुई है, ठीक है। अगर आप नंबर 1 के आगे देखें तो उसके अंदर एस्टिमेट के अंदर 16 लिखा हुआ है, विच मीन्स कि जी आप 16 घंटे का ये काम है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हर डिस्क्रिप्शन और हर आइटम के अगेंस्ट यू हैव अ डिस्क्रिप्शन और यू हैव एन एस्टिमेट कि ये कितने देर का काम है, ठीक है। एंड बाय के अंदर लिखा हुआ है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट बैकलॉग होती है उसके अंदर आपका जितना काम रहता होता है यू हैव दिस होल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स एंड यू हैव देयर एस्टिमेट्स एज वेल। अच्छा जी,
अब जो आपकी स्प्रिंट बैकलॉग होगी, ठीक है, एक तो हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर हमारी जितनी भी स्प्रिंट्स रहती हैं उन सब का डाटा है, ठीक है। वेयर जो स्प्रिंट बैकलॉग है उसके अंदर इंडिविजुअल स्प्रिंट्स का डाटा है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट के, आपका जो प्रोजेक्ट था ओवरऑल उसके अंदर 4 स्प्रिंट्स थी, ठीक है, लेट्स अज्यूम, तो उसके अंदर 4 स्प्रिंट्स बैकलॉग बनेंगी, ठीक है। और हर स्प्रिंट की हमने मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या पढ़ी है कि अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वन स्प्रिंट या वन इंक्रीमेंट इन स्क्रम इज 30 डेज। कोई भी स्प्रिंट या कोई भी इंक्रीमेंट 30 दिन से लंबी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट का देखें तो जो ये डेज लेफ्ट इन द स्प्रिंट सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर 15, 13, 10, 8। सो यू हैव बेसिकली सेट कि जी ये इसके अंदर, तो आप हर डे के वाइज आप प्रोग्रेस मॉनिटर करते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह स्टार्ट ऑन स्टडी वेरिएबल चैप्टर फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, उसके टोटल जो एस्टिमेशन आवर्स थे वो आपने ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि टोटल इस पूरी स्प्रिंट के एस्टिमेशन आवर्स थे वो थे 554। आप इंडिविजुअल हर स्प्रिंट के अंदर जो एक्टिविटीज होती जा रही हैं उनके आगे उनके घंटे लिखे हुए हैं कि ऑन अ सर्टेन डेट एक स्प्रिंट के ऊपर कितने कितने घंटे काम हुआ। आप स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर व्हाट यू डू इज यू बेसिकली ऐड अप all the work that is done for that particular sprint in a given day और उसको subtract कर लेते हैं टोटल जितना आपने टाइम एस्टिमेट किया हुआ, तो उससे आपको पता लग जाता है कि whether you are on track or not, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके एस्टिमेट्स थे वो सही थे कि नहीं थे, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके स्प्रिंट के ख़त्म होने में 2 दिन रह गए, ठीक है, और सेकेंड लास्ट डे को आपको पता लगा कि जी अभी आपके तकरीबन 100 आवर्स का काम रहता है, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स। सेकेंड लास्ट डे को आपको पता लगा कि इसमें जो 50 आवर्स का काम था वी हैव डन दैट, ठीक है, और लास्ट डे आपका 50 आवर्स का रह गया। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली आपने यू मॉनिटर इट ऑन डेली बेसिस। आप डेली जब आपकी स्क्रम मीटिंग होती है तो यू फिल दैट स्प्रिंट बैकलॉग, आपको पता लगता जाता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। अच्छा जी, और देन बिकॉज यू हैव दिस डाटा अवेलेबल इन योर स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये देखें कि रिमेनिंग आवर्स आप देखें तो इस स्प्रिंट के हैं 762, फिर उससे कम होते जा रहे हैं, आर कम होते 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 0 पे आ जाएंगे। जब 0 पे आ गए तो इसका क्या मतलब है, आपकी स्प्रिंट खत्म हो गई है, ठीक है। तो स्प्रिंट के अंदर आप बेसिकली जब स्प्रिंट बैकलॉग मेंटेन कर रहे हैं तो उससे आपके पास ये सारा डाटा आ जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर यू कैन मेक दिस एडिशनल चार्ट्स जो विच बेसिकली गिव यू एन इंडिकेशन कि आपका एक स्प्रिंट के अंदर कितना काम रह गया, ठीक है। ओके जी, अब एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्कस करना वो ये है कि जो कि मैंने आपको पहले जब हमने एजाइल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे या हमने इंक्रीमेंटल मॉडल डिस्कस किए थे कि जो एक प्रोडक्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, it should deliver some measurable value to the customer, ठीक है। measurable value से क्या मतलब है कि it should add some functionality to the product that is with the customer, ठीक है। कस्टमर को पता लगना चाहिए कि अगर उसने इतने पैसे दिए थे तो उसको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, यू नो, मतलब there should be some value added to the product that you are working on. This is very key to using any of these agile methods कि हर इंक्रीमेंट के बाद there should be some added value टू द प्रोडक्ट, ठीक है जी। और पोटेंशियली शिपेबल का यही मतलब है कि द प्रोसेस कैन बी हॉल्टेड आफ्टर एवरी स्प्रिंट एंड देयर विल बी सम वैल्यू, यानी कि अगर आप अपने प्रोसेस को वहीं पे रोक दें तो आपने कुछ प्रोडक्ट के अंदर नई चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ईच दिस इज कॉमन विद एवरी इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। एंड द रीज़न वाई आई हैव एम्फसाइज दिस इन एजाइल मॉडल्स इज क्योंकि इसके अंदर इंक्रीमेंट्स इतनी छोटी होती हैं कि हो सकता है कि यू नो यू कैन थिंक कि जी इतनी छोटी इंक्रीमेंट है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेशक इंक्रीमेंट छोटी हो, यू ऐड सम वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हो सकता है कुछ बग्स ही कस्टमर को मिले थे और उसने आपको कहा इनको इसी दिन फिक्स करके दो, या एक छोटी सी फंक्शनैलिटी थी, लेकिन देयर वुड बी सम वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इट मस्ट बी अ प्रोडक्ट नो मैटर हाउ इनकम्प्लीट, ठीक है, वो चलती हुई चीज़ होनी चाहिए, बेशक अभी पूरे फीचर्स उसके अंदर नहीं है। ओके जी, नाउ द फ्यू ऑफ द रीजंस के व्हाई वी शुड अवॉइड स्क्रम, ठीक है जी। नंबर 1 इज कि अगर तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो दे हेल्प यू इन सक्सेसफुली डिलीवरिंग टू द कस्टमर ऑन टाइम, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर स्क्रम,
ठीक है, क्योंकि स्क्रम के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर यू नीड लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम पीपल, ठीक है, और अगर आपकी टीम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट फॉलो स्क्रम, ठीक है जी। और योर प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज, अगर आपका प्रोजेक्ट को आप इंक्रीमेंट्स के अंदर डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू स्क्रम, क्योंकि स्क्रम के अंदर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी इंक्रीमेंट का साइज कितना है, 30 डेज। अगर आप अपने काम को या अपने प्रोजेक्ट को डिकम्पोज ही नहीं कर सकते वो 30-30 दिनों के चंक्स के अंदर, तो हाउ कैन यू यूज स्क्रम, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, और अगर आपका काम इस नेचर का है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इट्स अ टेंडर्ड प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री है इट डिमांड्स कि आप बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन उन्हें करके दें या आप उन्हें डिज़ाइन के पूरे डॉक्यूमेंट्स बना कर दें, तो इफ़ दैट इज़ द केस तो स्क्रम इज़ नॉट द आइडियल मॉडल। इनफैक्ट एनी एजाइल मॉडल्स कैन नॉट बी यूज इन दैट केस, क्योंकि हम इन सारे मॉडल्स के अंदर हमारा बेसिक फोकस क्या है कि वी डू मिनिमल डिज़ाइन, ठीक है, हमारा एम्फेसिस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर या इंक्रीमेंट को ख़त्म करने के ऊपर, ठीक है। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो स्क्रम शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। और अगर आपकी टीम के अंदर लोग इस बात पे ही ना एग्री कर सकें कि ये वाला काम कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है, या लोग ओनरशिप ना ले सकें या लोग टास्क को डिवाइड ना कर सकें, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो जो मैंने कहा था कि अगर कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं वो आपको सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लोग एग्री नहीं कर पा रहे तो यू शुड नॉट यूज स्क्रम। अच्छा जी, और आपकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे इस तरह से काम होता है कि आपने आज का जो काम किया नोबडी नोज कि आपने पिछले दिन क्या किया था, ठीक है, तो देन अगेन स्क्रम इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि स्क्रम के अंदर यू मॉनिटर एवरी डे कि आपने पिछले दिन क्या किया था और आप नए दिन का भी काम असाइन कर देते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर और आप कहते हैं जी मैंने अपनी कंपनी में कल से जाके स्क्रम लगाना है, ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू फॉलो स्क्रम यू नीड सर्टन कमिटमेंट फ्रॉम नॉट ओनली योर सेल्फ, फ्रॉम योर टीम, एंड यू नीड टू इंश्योर कि जी कस्टमर की तरफ से भी वो कमिटमेंट आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर अगर आपसे डिज़ाइन की चीज़ें मांगता रहेगा और इस तरह के काम करता रहेगा तो फिर स्क्रम नहीं आप यूज़ कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, नाउ बिफोर वी समराइज दीज एजाइल मॉडल्स आई नीड टू बेसिकली correlate extreme programming and scrum and overall agile principles. Okay, हमने कौन से agile principles पढ़े थे? There were 5 agile principles. Number 1 was customer involvement, then we have incremental development, then we have people not process, then we have embrace change, and then we have simplicity. So there were 5 agile principles. We saw कि extreme programming इनको किस तरह फॉलो करती है, ठीक है। जैसा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है, आप कस्टमर के साथ बैठते हैं, कस्टमर के साथ मिलकर यूज़र स्टोरीज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह स्क्रम के अंदर आप कस्टमर के साथ बैठते हैं और उसके साथ मिलकर अपनी स्प्रिंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट बैकलॉग देखी है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द कस्टमर, ठीक है, कि आप कस्टमर के साथ मिलकर अपना वो स्प्रिंट्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। सेकेंड जो एजाइल प्रिंसिपल था दैट वाज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वी हैव सीन कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहती है, ठीक है, और स्क्रम भी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कहती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीमेंट का मैक्सिमम साइज क्या है, 15 दिन। स्क्रम के अंदर इंक्रीमेंट का मैक्सिमम साइज क्या है, 30 डेज। लेकिन दोनों के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज, ठीक है। जिस तरह स्क्रम भी कहती है कि हर इंक्रीमेंट के बाद कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं हर इंक्रीमेंट के बाद प्रोडक्ट फंक्शनल होनी चाहिए, कोई चीज़ आप नई चीज़ फंक्शनैलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करें। सो देयर आर फ्यू थिंग्स कॉमन, लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन इनफैक्ट। इसी तरह पीपल नॉट प्रोसेस, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा था कि आप फॉर एग्जांपल जब कोडिंग करते हैं तो आप पेयर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जब एस्टिमेशन करते हैं तो टीम सारी मिल के बैठ के करती है। इसी तरह स्क्रम के अंदर भी अगर आप देखें तो हर जो स्प्रिंट का एस्टिमेट किया जाता है, हमने देखा था कि जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट ऑनर भी मौजूद है, स्क्रम मास्टर भी मौजूद है, हमारी टीम भी मौजूद है। एवरीबॉडी सिट्स टुगेदर एंड दे मेक एन एस्टिमेट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्प्रिंट या एफर्ट दैट विल बी स्पेंट ऑन ईच स्प्रिंट, ठीक है जी। नाउ अच्छा, इसके बाद हमारा था एम्ब्रेस चेंज, ठीक है। एम्ब्रेस चेंज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैसे करता है, पहली बात उसके अंदर रीफैक्टरिंग है, फिर बिकॉज इट्स एन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट
तो हर इंक्रीमेंट के बाद कस्टमर कैन कम बैक एंड ही कैन से जी आई नीड दिस एंड दिस चेंज, और हमारा डिज़ाइन सिंपल होता है तो इट मेक्स इट ईजी टू चेंज, ठीक है। इसी तरह स्क्रम के अंदर भी अगर आप देखें तो बिकॉज देयर इज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड वी डू नॉट, क्योंकि हम वी बिलीव इन चेंज इन स्क्रम एज वेल, ठीक है। जितने भी एजाइल हैं उनके अंदर वी हैव टू बिलीव इन चेंज. When we believe in change, so we do not spend a lot of effort in planning, designing. We basically focus our attention on implementation and on development. ठीक है. अच्छा जी, ये तो थे कुछ चीज़ें जो कि agile principles के हवाले से. We've seen कि जी both XP and Scrum they easily fall into those agile process models क्योंकि they follow all those agile principles. ठीक है. अब just to finally put together things कि जी extreme programming के अंदर आपकी हर जो इंक्रीमेंट होती है दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टोरीज, उनको हम कहते हैं यूजर स्टोरी. स्क्रम के अंदर वी कॉल देम स्प्रिंट्स. स्प्रिंट्स की जो एस्टिमेशन होती है वो टीम और कस्टमर मिलके करते हैं. यूजर स्टोरीज की जो एस्टिमेशन होती है वो भी आपकी टीम करती है. और दोनों के अंदर एस्टिमेशन किस तरह करते हैं, हम यूजर स्टोरी को भी उठा के स्मॉल टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम एस्टिमेशन करते हैं. स्प्रिंट्स को भी हम उठाते हैं और उसको टास्क में डिवाइड करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम एस्टिमेशन करते हैं. अच्छा जी, इसके बाद आपकी जो एक इंक्रीमेंट का साइज है, ये एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि आपकी जो इंक्रीमेंट्स होती हैं वो दे कैन बी मल्टीपल इंक्रीमेंट्स इन अ डे, और मैक्सिमम साइज ऑफ इंक्रीमेंट इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज 15 डेज, जबकि स्क्रम के अंदर मैक्सिमम क्या 30 दिन. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस. एक के अंदर 2 वीक्स है, एक के अंदर 30 दिन है. अच्छा जी, इसके बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी जिसका हमने कहा था रीफैक्टरिंग. ठीक है, तो स्क्रम के अंदर वो नहीं है. ठीक है, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर पेयर प्रोग्रामिंग था, स्क्रम के अंदर भी वो नहीं है. ठीक है, लेकिन स्क्रम के अंदर और कुछ चीज़ें हैं. जैसा स्क्रम के अंदर आप डेली अपने स्प्रिंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसको हम कहते थे डेली स्क्रम, कि योर टीम सिट्स टुगेदर डेली और स्क्रम मास्टर अपनी टीम से पूछता है कि जी आपने आज क्या किया, कल क्या किया, आपको क्या मसले हैं, आपने कल क्या करना है. सो यू बेसिकली मॉनिटर योर प्रोग्रेस डेली. उसकी वजह से आपको क्या पता लगता है कि आपने जो स्प्रिंट्स के एस्टिमेट्स किए हुए थे हाउ एक्यूरेट दे वर. ठीक है, कि इनके अंदर क्या क्या गलतियां थी. ओके जी, और फाइनली एक चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है कि आपने जब भी स्क्रम करके देना है या जब भी आपने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग करनी है, उसकी जो भी इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को देंगे देयर शुड बी सम एडेड फंक्शनैलिटी इन द प्रोडक्ट. दिस इज अ गिवन. इफ दैट इज नॉट द केस तो आपके इंक्रीमेंट इज फेल्ड, क्योंकि आपको हर इंक्रीमेंट के बाद यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट टू द कस्टमर. ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है उसके अंदर प्रोडक्ट ऑनर इज प्रेजेंट, और जो स्क्रम टीम होती है इट बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट्स द फंक्शनैलिटी टू द प्रोडक्ट ऑनर कि इस स्प्रिंट के अंदर हमने प्रोडक्ट के अंदर ये नई फंक्शनैलिटी डाली है. ठीक है जी. नाउ फाइनली व्हेन टू चूज दीज मॉडल्स, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखे थे, एक चीज़ तो ये है कि हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी कि एक तो अगर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इफ़ यू नो कि आपका कस्टमर ऐसा है जो कि आपको हु इज़ नॉट कमिटेड, फुली कमिटेड का ये मतलब है कि ही हैज़ अदर कमिटमेंट्स. ठीक है, और ही कैन नॉट गिव यू एनफ टाइम. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इंक्रीमेंट का साइज 15 दिन है, और इंक्रीमेंट जब कंप्लीट होनी है एक्सट्रीम प्रोग्राम के अंदर तो आपको कस्टमर से मिलना ही मिलना है. जिससे स्क्रम का अगर 30 डेज है तो आप एज्यूम करेंगे अगर सारी इंक्रीमेंट्स भी 30 दिन की हो तो आपको हर महीने कस्टमर से मिलना. तो इफ़ यू नो कि आपका कस्टमर आपको 30 दिन या 15 दिन बाद नहीं मिल सकता तो यू कैन नॉट यूज दीज मॉडल्स. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, और दूसरा जो फ्लॉ था हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था, वो कि आर्किटेक्चरल जो डिसीजंस होते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन, क्योंकि हम डिज़ाइन को बहुत सिंपल करते हैं इसके अंदर, वी डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिज़ाइनिंग. ठीक है, तो एक जो प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्योंकि हम डिज़ाइन हमारा पूरा गलत हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड पीपल इन योर टीम हु हैज़ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हु कैन डिसाइड डिज़ाइन फॉर यू. ठीक है, हु कैन हेल्प यू चूज बेटर डिज़ाइन फॉर अ गिवन प्रोडक्ट. इफ़ यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस देन दीज मॉडल्स आर नॉट फॉर यू. ठीक है, इसी तरह हमने स्क्रम के अंदर और भी चीज़ें देखी हैं कि अगर आपसे आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है तो देन अगेन यू कैन नॉट यूज़ दिस प्रोसेस मॉडल्स, क्योंकि हमारा तो प्रिंसिपली इन एजाइल के अंदर वी बिलीव के there should be minimal documentation. So if the customer is looking for a lot of documentation and lot of design artifacts, then Scrum and extreme programming cannot be used. Okay जी, and finally so just to summarize कि जी हमने
ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स पढ़े. उन ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल के अंदर हमने वाटरफॉल पढ़ा था, उनके अंदर हमने इंक्रीमेंटल पढ़ा था. वी स्टडी द प्रोटोटाइप मॉडल, वी स्टडी द स्पाइरल मॉडल. उन मॉडल्स के अंदर हमने ये देखा कि ऑल्दो दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं. उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स ना कहें, लेकिन दे आर मे बी सुटेबल टू डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है. व्हाट आई बिलीव इज कि जितने भी R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो दीज एजाइल मॉडल्स दे आर वेरी सूटेबल इन दोज प्रोजेक्ट्स. क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जो कस्टमर होता है वो आपकी अपनी कंपनी के अंदर ही है. जिस तरह इफ आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर और मेरा आइडिया है कोई नई रिसर्च का, तो आई नो व्हाट आई वांट इन द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और मेरी टीम मेरे पास कभी भी आ सकती है. ठीक है. तो इन केस ऑफ R&D प्रोजेक्ट्स आई बिलीव के दीज एजाइल प्रोसेस मॉडल दे आर मोस्ट सूटेबल. ठीक है जी. Thank you very much. And so today's lecture we concluded Scrum and we concluded Agile process models. In the next lecture we'll move on analysis phase of or requirement gathering, requirement engineering. We will cover those things. Assalamu alaikum.